ہلو، السلام علیکم۔ میں آپ کے پاس چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند آئے، جو کہ انسانی صحت کے بارے میں تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ موضوعیت فٹنس کے متعلق۔ لہذا دنیا میں 27,000 لوگ جو ہیں وہ غلط خوراک اور جسمانی فرسٹ ایڈ نہ ملنے سے ان کی اموات ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کسی جریدے میں پڑھا، یہ میں جتنا بھی آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں یہ میں کتابوں سے پڑھا ہوا ہوں۔ میں کوئی یونیورسٹی یا کالج کا طالب علم نہیں ہوں، نہ ہی پاکستان میں کوئی یونیورسٹی یا طالب علم کالج ہے جو کہ اردو میں سمجھا سکے، پڑھا سکے۔ اس لیے ہمارے ملک میں لا علمی ہے، اس لیے انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے اس کا فائدہ اس کو ہونا چاہیے اور اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، تاکہ اس سے اس کا جو نقصانات ہیں اس سے بچا جائے، اوور ویٹ نہ ہو۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے احتیاط سے کھائیں، احتیاط برتیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کھانے پینے کے متعلق آپ کتابیں رسالے ضرور پڑھا کریں، تاکہ انسان کو نالج ہو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں اور کتنا کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے۔ لہذا آپ کو متمنا کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو جسم کا وزن ہے وہ اپنے قد کے ہائٹ کے انچوں سے نہ بڑھنے دیں۔ جیسے کہ آپ کا قد 6 فٹ ہے، 72 انچ بنے تو 72 کلو وزن ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کے جسم میں فیٹ اکٹھی ہوئی ہے جو کہ نقصان دہ۔ یہ فیٹ جو ہے یہ کولیسٹرول کے لیے موجب بنتی ہے، جو کہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف دہ نظر آتا ہے۔ انسان کی جو رگیں ہیں ان میں فیٹ جمع ہو جاتی ہے اور دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر پیچھے جائیں تو ڈاکٹر برنارڈ جو تھا اس نے سب سے پہلے دل کے متعلق اپنی ہدایات جاری کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ انسان کی جو رگیں ہیں ان میں چربی جمع ہونے میں 10 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ لہذا آپ کو متمنا کیا جاتا ہے کہ آپ فیٹی چیزوں سے اجتناب کریں اور آپ ورزش کی طرف بھی جائیں۔ لہذا ورزش کو اپنا زندگی کے ساتھ اس کا معمول بنا لیں۔ ورزش جو ہے یہ آپ کے بہت کام آتی ہے، کیونکہ ورزش ہی آپ کی صحت اور توانائی کو برقرار رکھتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک پاکستانی تھا، بہت رئیس آدمی تھا، اس کو پاکستان میں ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی اس کو کیا بیماری ہے۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ کا علاج وہاں ہوگا۔ انگلینڈ چلا گیا وہ، انگلینڈ میں اس نے دکھایا تو انگلینڈ والوں نے کہا بھی آپ کا علاج ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہا تو آپ امریکہ چلے جائیں، فلانا ہاسپٹل ہے جو کہ آپ کی پرابلم کو دور کرے گا۔ وہ جب ہاسپٹل گیا وہاں تو ہاسپٹل کے باہر بہت بڑا لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا؟ یہ سوال انہوں نے بہت بڑا لکھ کے لگایا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب ڈاکٹروں نے اس کا مریض کا معائنہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ پیدل سفر نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کے جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے۔ اس کو ہدایت کی کہ آپ پیدل چلا کریں، آپ کی جو بیماری ہے اس کا علاج خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ پیدل چلیں، پیدل چلنے سے آپ کی صحت برقرار رہتی ہے۔
फिटनेस रहने के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। हवादार जगह में सांस लेना, फेफड़ों को बार बार फुलाना और सांस बाहर निकालना, जैसे कि ये लोग करते दौड़ते हैं तो इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और दिल का जो मसल है ये भी मजबूत होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अपना साथी बना लें। अगर आप ओवरवेट हैं, ज़्यादा फैट है, तो प्रॉब्लम मायूस मत हों, ये आप ऐसा ऐसा इसको कवर कर लेंगे। अगर आप जिम नहीं जा सकते या ग्राउंड वगैरह में नहीं जा सकते या घर की ग्राउंड, क्योंकि फैटी लोग जो होते हैं ज़रा सुस्त होते हैं, वो काम करते हुए सुस्ती कर जाते हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो टेबल लॉन्ग टेनिस खेलते हैं फैटी लोग जो है वो जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उनका स्टेमिना नहीं होता। इसलिए जिन खिलाड़ियों का स्टेमिना होता है वो अपनी गेम को जीत लेते हैं। बॉडी बिल्डरों का भी यही हाल है। बॉडी बिल्डर जो हैं ये जिम में जाते हैं तो वर्जिश करना शुरू कर देते हैं, मगर फेफड़े उनका जो स्टेमिना है उसकी तरफ से वो कमज़ोर होते हैं। इसलिए उनको जो स्टेमिना है उसको मजबूत करने के लिए हफ्ते में 3 बार ज़रूर जॉगिंग या रनिंग करनी चाहिए। बैठे रहने जो लोग दफ्तरी माहौल में काम करते हैं, बैठे रहने का, तो वो 72 से 85 उनकी कैलोरी खर्च होती है, मगर जो वॉकिंग करते हैं उनकी कैलोरी 280 से 320 खर्च होती है, और जो साइकिलिंग करते हैं 360 से 420 तक उनकी कैलोरी सर्व होती है। और ये जो रनिंग करते हैं 5 मील फी घंटा की रफ्तार से, तो उनके जो है 400 से लेके 450 तक उनका बर्न होती है। और जो रनिंग करते हैं उनकी 5.5 मील फी घंटे की रफ्तार से, तो उनका जो बर्निंग है 600 कैलोरी से 660 कैलोरी बर्न होती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, चाहे थोड़ी थोड़ी आप सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालें। और अगर घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ें। ये आपको जब रोज़ाना की ये वर्जिश करेंगे तो आपका इसमें कोई शक नहीं कि आप दिन ब दिन हेल्थी होते चले जाएंगे, क्योंकि ये इसका असूल है कि जो वर्जिश है ये पाबंदी से करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करो, पाबंदी से करो। अगर एक ही दिन में ज़्यादा वर्जिश करोगे तो दूसरे दिन आपका जो स्टेमिना है वो नहीं चाहेगा कि आप वर्जिश करें। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी वर्जिश करें ताकि दूसरे दिन भी आपको वर्जिश करने की भूख हो। इसलिए आप वर्जिश को अपनाएं। वर्जिश से ये है कि आपका जो दिल है और फेफड़े ये मजबूत होते हैं। उसके बाद ये जो है आ जाता है कि अपना इसको दौड़ने रस्सा फलांगने, ये वर्जिशें करें, स्विमिंग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें या जिम्नास्टिक करें। टांगों की जितनी वर्जिशें हैं ये सब दिल और फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती हैं, ये आपका स्टेमिना मजबूत करती हैं। इसलिए आपको वर्जिश करनी चाहिए। और जो हमारा ढांचा है इसके गिर्द जो पट्टे लिपटे हुए हैं इनको मजबूत करने के लिए इनको मुज़ाहमती तरबियत देनी चाहिए। ये जैसा कि वेट लिफ्टर करते हैं, इनके जो पट्टे होते हैं ये मजबूत हो जाते हैं। और क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पट्टे के जो रेशे होते हैं वो भी बारीक होना शुरू हो जाते हैं, दुबले होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप किसी
अनजाने में ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं तो वो पट्टे आपको तकलीफ़ देंगे, उनमें दर्द पैदा हो जाएगी, आपका मसल ज़ख्मी हो जाएगा, आप काफ़ी दिनों के लिए बीमार हो सकते हैं। इसलिए और अगर आपका इरादा हो वर्जिश करने का तो सबसे पहले आप फिटनेस सर्टिफिकेट लें, डॉक्टर को दिखाएं कि आप वर्जिश करना चाहते हैं, ताकि वो आपका मालिक जो है वो आपको बताएगा कि आपके वर्जिश करें कि कितनी रफ्तार से करें, कितनी तवज्जो से करें। लिहाजा आपको चाहिए इसके साथ खुराक पे भी कंट्रोल करें। खुराक जो है इसमें आप जो है सब्जियों की तरफ ज़्यादा माइल हो जाए, क्योंकि आप इनमें सब्जियों में रेशादार ग़िज़ाइयत होती है। रेशादार ग़िज़ाइयत का जो रेशादार तरकारियाँ हैं ये जल्दी हज़म नहीं होती, इनका जो सेलुलोज है जो कि इनको हज़म करने में मददगार साबित होता है, और ये जो फाइबर है इसमें पाया जाता है, ये फाइबर जो है वो बहुत अच्छी किस्म की चीज़ है। लिहाजा आप सब्जियां खाएं और फाइबर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो जिन लोगों को फाइबर नहीं मिलता वो बवासीर जैसी बीमारियां और आंतों का कैंसर, आंतों का सूज जाना और बवासीर और पेंडिस वगैरह जैसी बीमारियां और बहुत सी इन धाती बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में फाइबर वाली ग़िज़ाएँ रखें। फाइबर वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद गोभी में पाई जाती है, गाजरों में पाई जाती है, मटरों में पाई जाती है, और जो फलियाँ हैं उनमें पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। लिहाजा आप सब्जियां और फल वगैरह से खाने में मोहब्बत करें, क्योंकि ये गोश्त जो है ये इंसान को बीमार करता है। ज़्यादा मत खाएं, लिमिट तादाद में खाएं, थोड़ा एक बोटी रोज़ की खाएं बहुत है। दालें खाएं, सब्जियां खाएं, इससे आपका दिन ब दिन आपको सेहत मिलती चली जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप सेहतमंद हो रहे हैं, आपको काम करने में भी दिलचस्पी पैदा होगी, किसी से बात करने में आप अपने अंदर तरोताज़गी महसूस करेंगे। और आपको चाहिए कि रोज़ाना फिटनेस की तरफ ध्यान दें। और खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।